السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہتے ہیں ویلکم. میرے ساتھ ہیں سبین فاروق. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. سبین کی انرجی تھوڑی سی آج ڈاؤن ہے کیونکہ سبین کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے. اچھا میری کیا خراب ہے؟ میرا خیال ہے سب کی خراب ہوگی. گلے ہم سب کے خراب ہے. موسم اس طرح کا کچھ چل رہا ہے کہ بس نہ پوچھیں. سبین دماغ ٹھیک ہونے چاہیے, گلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. دماغ ٹھیک ہونے چاہیے, گلے بھی ہونے چاہیے. نہیں, گلے بھی ہونے چاہیے, یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ختم بھی کرنے چاہیے, لیکن ان کو ایکسپریس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اینی ہاؤ بات یہ ہو رہی تھی کہ گلے شلے اپنے ٹھیک رکھیں جی. میرے والا حال نہ کرے کہ اگنور کرتے رہیں کہ کل ٹھیک ہوگا, پرسوں ٹھیک ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انفیکشن سے آپ کا ایسا حال ہو جائے کہ پوری رات آپ کو بخار رہے اور صبح اٹھ کے آپ اپنا شو کرنا ہے, کیونکہ نیند تو ویسے بھی نہیں آنی. بات تو صحیح ہے, لیکن آپ اس کے لیے یوں کریں کہ فالودہ ٹرائی کریں. کیا ٹرائی کروں؟ فالودہ ٹرائی کروں. گلا خراب ہے. آپ کچھ لوگوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے کون سے لوگ ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس. اچھا, آس پاس لوگ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. آپ نے احتیاط کرنی ہے. نہیں, اگر آپ کا گلا ٹھیک ہوتا ہے, آئس کریم سے کہوا پینا ہے, چائے پینی ہے, کافی پینی ہے, whatever suits you. وہ کافی کے علاوہ لسی بھی ہو سکتی ہے, وہ فالودہ بھی ہو سکتا ہے, کسی کا ہو سکتا ہے. صبح ان کی باتوں پہ مت دھیان. اچھا آپ جو کریں کہ آپ ڈاکٹر کے مشورہ کریں, میرے اور سبین کی باتوں پہ نہ جائیں. نہیں, مجھے لگتا ہے یہ جو فالودہ اور یہ سب آپ بول رہے ہیں, صبح آپ کو یقیناً کوئی ریل دیکھ کے آئے جہاں پر گیان بانٹا جا رہا ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ ہر وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹوٹکا وہ ٹوٹکا, اور لٹرلی جب آپ وہ ٹوٹکا گھر میں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ٹوٹکے ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتے. ایبسلیوٹلی, صاحب نے بالکل درست کہا. جو ریلز ہیں نا, یہ ہماری زندگی کا حصہ تو بن چکی ہیں. کسی کو وہ امپریس کرتی ہیں, کسی کو وہ ڈپریس کرتی ہیں. جو تو نے بات کی ٹوٹکے والی سے بھی, یہ تو چلو ایک اچھی بات ریل کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ وداؤٹ ہیونگ ایبسلیوٹ نالج آپ ایک ریل کے تھرو کچھ چیزیں سیکھ جاتے ہیں, انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ریلز میں, کسی انفلوئنسر کی سکسیس, کسی کی بیوٹی, کسی کی کوئی اور بات, وہ آپ کو ریئل لائف سے تھوڑا سا دور کرتی ہے. ریئلسٹک گولز جو ہوتے ہیں, ریئلسٹک ریلیشن شپ گولز ہوتے ہیں, اس سے تھوڑا دور کر رہی ہوتی ہے آپ کو. تو میں آج اس پر ضرور بات بھی کروں گا کہ جو ریلز ہوتی ہیں اس کو آپ اس طرح سے ضرور دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کی سکسیس سے آپ نے اسے ایڈمائر کیا, آپ نے کہا فائن, اٹس گڈ, لیٹس سیلیبریٹ دیٹ ان یور اون وے, بٹ اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا, اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. اپنے لائف کو, اپنی ہیلتھ کو, اپنے ریلیشن شپ کو کسی اور کی زندگی سے اور ریلیشن شپ سے اور ایکسپریشن سے کمپیئر نہیں کرنا. آپ کی زندگی ہے, آپ کا اپنا انداز ہے, اپنا مزاج ہے, اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. لگتا ہے صبح بہت ڈز لگی ہے یہاں پہ, کوئی دکھتی رہا کہ کوئی بیگم نے کوئی ریل شیل تو نہیں بھیج دی کہیں کسی انفلوئنسر کی کہ فلانے نے مجھے یہ گاڑی گفٹ کی ہے, میرے میاں نے تو مجھے جناب ڈائمنڈ کی رنگ گفٹ کی ہے. کوئی ایسے معاملات. ہاں, ایک ریل صبح ہی, اچھا میں I woke up at 5 اور میری بیگم اس سے پہلے اٹھ گئی تھی, تو جیسے میں نے اٹھ کے فون دیکھا کہ ریل آئی ہوئی تھی, میں نے وہ ریل دیکھی. اس کے بعد اب میں نے کہا میں کیا جواب دوں, میں نے فی الحال تو اگنور کیا اس ریل کو, لیکن I'll talk about it later. ہاں دیکھیں, ان ریئلسٹک چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ریئلسٹک بھی ہو سکتی ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, بٹ زیادہ تر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. اسپیشلی ہر کوئی اپنا ایک اچھا ٹائم سوشل میڈیا پہ دکھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے, لیکن اس سے انفلوئنس آپ نے نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انفلوئنس ہو گئے تو آپ کی اپنی زندگی متاثر ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویسے نہیں ہوتا. آپ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کوئی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. سو جو ایکچولی زندگی ہر کسی کی ہوتی ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ ہوتی ہے, کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. وہ چاہے ریلیشنز ہوں, وہ چاہے آپ کی سکن ہو, وہ چاہے آپ کی ہیلتھ ہو, وہ چاہے آپ کے بال ہوں. لٹرلی اتنی ساری ریلز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جی فلانی چیز یوز کریں, ایسے کہ ٹھیک ہے ہر چیز کے فائدے نقصانات اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان ریئلسٹک گولز آپ نے اپنے سیٹ نہیں کرنا, اسپیشلی اپنے گھر میں. اور یہ میں پارٹنرز کے حوالے سے لازمی بات کری. بہت اچھی بات ہے آپ نے جو بات کر دی کہ اسپیشلی فار پارٹنرز. ایسا دوسری اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں کیا کہنے لگا تھا, مجھے بھول گئے, کوئی بات نہیں. شعیب نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کی جگہ یہ ہے کہ اپنے وقت کا جو ہے وہ بہت اچھے سے استعمال کریں اور کسی اسکل کی طرف جائیں. اچھا میں نے بھی کہا نا کہ میں کچھ کہنے لگا تھا, بھول گیا. یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے سبین, جب ہم بہت زیادہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بات کرنی ہوتی ہے اور بالکل یہ بھی ریئلسٹک ہم بھول جاتے ہیں, ہاں زون آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اچھا اس میں بات ہم ضرور کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے نا, اس میں بہت سی چیزیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, آپ انہیں چیریش کریں, ان کو انجوائے کریں, اور کسی کی زندگی سے اپنا وہ کمپیئر نہ کریں. That's what I wanted to say, comparison. یہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا, اچھا فلاں کی زندگی, اس کا ریلیشن, اس کا انداز, اس کی جاب, اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کا لائف اسٹائل اینڈ ایوری تھنگ. پلیز اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ود اینی ون ایلس. اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, اپنے انداز سے بنائیں. دیٹس دا بیوٹی اینڈ دیٹ شوڈ بی دی بیوٹی. اسکل سیکھیں. اچھا یہ بھی بات ہے, ہاں
सोशल मीडिया के बजाय या रील्स के बजाय आप स्किल सीखें। और आज हमने स्किल की बात इसलिए भी की कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, यहाँ पर यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा, यानी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, विच इज़ एन एसेट। लेकिन इसको यूटिलाइज हमने ऐसे करना है कि उनको हमने स्किल्स की तरफ लेकर जाना। आज वैसे भी दुनिया भर में यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम इस पर बात भी करेंगे। आगे चलकर पाकिस्तानी कुछ ऐसे नौजवान भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे जो अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात। लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। ऑक्सीजन के बगैर सिमट करना, मैं कहता हूँ कि वही सिमट है। और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान। फन के कदरदान घटने लगे तो वो फन भी मादूम होता चला जाता है, जैसे डेरा इस्माइल खान में मौजूद 500 साल पुराना लेकर वर्क। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना, वो लेडीज दर्जी था।
परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता. आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना. जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें. पाँव में बहुत दर्द हो रहा है. पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्ने मूंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै. ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान. आपको कहेंगे खुश आमदीद. और आज सवाल तो मैंने करना था तुमसे. जी जी करें. हाँ, सवाल ये है कभी स्केटिंग की है? स्केटिंग की हाँ, है. कभी ट्राई की हो? मैंने नहीं की, मुझे डर अपनी लगता जिंदगी में 30-40 साल पहले, 30 साल पहले. नहीं, मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं की. पैदा होते तो मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं की. ओके, कोई 20 साल पहले 20 साल पहले मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं की क्योंकि मुझे डर लगता था. गिरना है. और मुझे ये लगता है कि हमारी बारी इतना ज्यादा इन वाली स्पोर्ट्स का रुझान नहीं नहीं था. That's true. था. ऑनेस्टली नहीं था. हमारी होती थी वो देसी किस्म की, हम खेला करते. अच्छा, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं है पता, ना? मेरी दफा क्योंकि नहीं वो थी. हाँ, क्योंकि वो उस आपके काफी टाइम के बाद इन्वेंट. हमारे वक्त में तो स्केटिंग वगैरह थी तो हम तो स्केटिंग ही करते थे. अच्छा, आपके जमाने में थी. ओके. कि सीटी मारते थे ना हमारे जमाने में, तो स्केटिंग थी. देसी स्केटिंग. लेकिन हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है आपने की सबिन, कि अब जरा हम देखते हैं कि बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत सी फैसिलिटीज होती हैं, बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होता है, इकोसिस्टम ऐसा होता है कि आपको स्केटिंग, वो चाहे आइस स्केटिंग हो, वो चाहे रोलर स्केटिंग है, कोई भी स्केटिंग हो सकती है. अदरवाइज और डिफरेंट स्पोर्ट्स बच्चे जा रहे हैं, सीख रहे हैं. अच्छा, ना सिर्फ ये कि इंटरेस्ट से सीख रहे हैं बल्कि फिर पार्टिसिपेट करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स में, और फिर उन इवेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लब को, अपनी कम्युनिटी को, और फिर जीत के भी आते हैं. हम कुछ वीडियोस जब देखते हैं ना स्केटिंग करते हैं, हम कहते हैं मतलब इट्स वेरी वेरी डेंजरस. एक्चुअली पेरेंट्स परेशान नहीं होते क्योंकि वो बिल्कुल तेजी के साथ आना, और वो घूम भी जाते हैं. आई डोंट नो मैन्यूवरिंग और व्हाट, बट बड़ा मुश्किल सा वो काम होता है जो बच्चे कर रहे थे. मैंने खुद F9 पार्क में सभी ने ट्राई किया. आपने तो वीडियो लगाई थी, आप तो गिर गए थे बार-बार. हाँ, मैं गिर गया. आप हर सेकंड के बाद डांस, हर सेकंड के बाद डांस. आप मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम सेकंड के बाद ना को मिनट तो करो ना कम से कम, क्योंकि मिनट तो आपने मुझे उसने skating नहीं सिखा की दिया था total. कि नहीं, उसने सिखाया था ना मुझे कि अच्छा आप अगर आगे अच्छा. झुक के रहें तो फिर थोड़ा सा गिरने के चांस कम होता है, फिर गिरते भी जरा बेहतर है. हाँ, जब आप थोड़ा स्ट्रेट हो फिर बैक पे गिरते हैं, फिर कमर पे चोट लग सकती है. सो टेक्निक ये है कि आपने झुकना है, झुकना सीखें. जिंदगी में बड़ा जरूरी है झुकना. ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है. और हमारे आज के जो बच्चे हैं, हमारी यंग जनरेशन, वो ये मुश्किल काम करे. और एक ऐसी ही चैंपियन से आज आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जो कि 4 साल की उम्र से स्केटिंग कर रही है. वाह, माशाल्लाह. और अभी तो इसके 11 साल अलावा की हो गई हैं. अब तो 11 साल की हो गई है. मैंने ये बताया कि 4 साल की उम्र से उन्होंने, मैं भी यही बता रहा हूँ ना कि अब 11 की हो गई हैं. आप 11 साल की हैं जी. और इसके अलावा 2 इंट्रा क्लब नेशनल चैंपियनशिप्स में जबरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है. और 2 बार जो है वो पहली पोजीशन हासिल किया, और 1 बार दूसरी पोजीशन, और 1 बार जो है वो तीसरी पोजीशन. मतलब फर्स्ट 3 में वो हमेशा से रही हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. नाम इनका बड़ा मुश्किल है जो अलाइना सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है. अलाइना नाम है उनका, हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अलाइना. वालेकुम अस्सलाम. बहुत प्यारा नाम है बस, माशाल्लाह. आपके बारे में नाम का मतलब बताएं. मूनलाइट. मूनलाइट, इट्स ब्यूटीफुल. सो अलाइना थोड़ा सा बताएंगे स्केटिंग की तरफ शौक. आइलीन. मैं वाकई सॉरी आइलीन. अच्छा, वाकई बोल मुश्किल रही थी. नाम है. आइलीन. अच्छा, मैंने पूछा भी था ब्रेक में लेकिन मैं खुद गलत कर गया. मुश्किल नाम हो तो ये हो जाता है, हमारी माजरत कबूल कीजिए. आइलीन, अब आपने याद रखना. आइलीन मतलब इसका मूनलाइट. सो आइलीन थोड़ा सा बताएं, 4 साल की उम्र का मतलब ये कि बस आपने तो पैदा होते ही ये सोचा कि मुझे स्केटिंग करनी है. जी, मैंने असल में ऐसे स्टार्ट की थी कि मेरा भाई भी स्केटिंग करता था पहले, तो मुझे उसको देखकर शौक हो गया था. मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे भी करनी है. उसके बाद मम्मा ने मुझे स्केट्स दिलाए, तो वो मैंने पिंक कलर के लिए थे. पहले मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने स्केटिंग स्टार्ट की पहले खुद से. फिर मैं गिरती थी, उठ जाती थी. बाद में फिर मम्मा ने ऑनलाइन एक स्केटिंग क्लब ढूंढा था, वो कराची में था. कराची स्केटिंग क्लब. उसके सर बहुत अच्छे थे, वो स्केटिंग
प्रैक्टिस भी करवाते थे हर दिन। फिर मैं उनके पास जाती थी, मैं गिरती भी थी लेकिन मैं हार नहीं मानती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं नेशनल लेवल पे हूँ। माशाल्लाह। भाई कितने बड़े हैं आपके? भाई अभी 15 के हैं। और अभी भी कर रहे हैं स्केटिंग वो? नहीं, अब ज़्यादा उनको शौक नहीं है, वो क्रिकेट करते हैं। तो आपको भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपका शौक कहीं और तो नहीं चला जाएगा, लेकिन या आपने आगे इसको प्रोफेशनली भी परस्यू करने का सोचा? ऑलरेडी आप नेशनल लेवल पे तो माशाल्लाह खेल ही रही हैं। जी, मैं इसको आगे जाके नेशनल लेवल पे परस्यू करूँगी क्योंकि मेरा पैशन भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको परस्यू करूँगी। चलो ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो आज की यूथ है, जब हम कह रहे होते हैं ना, आज हम बात कर रहे हैं वैसे भी कि यूथ स्किल्स डे जिस तरह से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये एक स्किल है, ये हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को आप लोगों ने फ़ोन देने के बजाय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कोई स्किल्स सिखाएं बच्चे को। और जिस तरह से जो आइलीन है, उनके पेरेंट्स ने 4 साल की उम्र से उनको ये स्किल सिखानी शुरू की है, तो बच्चे को बहुत छोटी उम्र से जब आपको लगे कि हाँ उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ ना कुछ सीख सकता है, सीख सकती है, तो आगे लेकर चलें और उसको जो है उस तरीके से उसको परस्यू भी कराएं। अच्छा, अब आगे आइलीन क्या आपने प्लान किया हुआ है, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि आपने प्रोफेशनली भी मजीद इसको आगे आपने परस्यू करना है, सो व्हाट्स द प्लान? कोई गोल टारगेट आपने सेट किए हैं कि अब मुझे ये वाली चैंपियनशिप खेलनी है और उसके बाद मुझे आगे जाना है? मैंने ऐसे गोल किया हुआ है कि मैं आगे जाके ओलंपिक्स में करूँगी और पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को बारे में भी दिखाना है, क्योंकि ज़्यादा ओलंपिक्स में देखें तो पाकिस्तान का ज़्यादा नहीं होता, बाई कंट्रीज़ का ही होता है। तो मैं अगर स्केटिंग में जाऊंगी तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी और बाकी भी मैं नेशनल लेवल पे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती रहूंगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा आप आइलीन अपनी रूटीन भी बताएं कि अच्छा डेली जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं? हम लोग F9 पार्क इस्लामाबाद में करते हैं प्रैक्टिस, और ये 1 आवर के लिए होता है और उसमें हम लोग बस स्पीड स्केटिंग करते हैं और एक्सरसाइजेस कराते हैं। सर डेली नहीं होता, सिर्फ वीकेंड्स पे होता है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो इन 3 दिन में ही होता है और 1 आवर का होता है। अच्छा, और वहाँ पे वैसे कितने और बच्चे हैं जो कि आ रहे हैं सीखने, ताकि हम थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगाएंगे इस्लामाबाद में कितना रुझान है इसका? वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं हर वक्त, क्योंकि सर के बहुत ज़्यादा अकाउंट्स भी हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक, हर जगह। सर तो आपको वैसे छाए हुए हैं ना, वो तो खुंजराव से पिंडी आ जाते हैं स्केटिंग करते करते। जी, तो सब उनको जानते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि बच्चों को भी स्केटिंग सिखा दें हमारे, तो फिर वो सिखाते हैं सबको और बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। वहाँ पर 2 क्लब्स हैं, एक उनके भाई का है लेकिन मैं उनके क्लब में हूँ, सर बिलाल के। अब जरा बताएं चोट कितनी दफा लगी और कहाँ कहाँ चोट लगी है? फिर चोट लगने के बाद बाबा परेशान ज्यादा हुए या मामा ज्यादा परेशान? और बच्चे जो है वैसे भी श्रेप स्केटिंग के बच्चे, क्या बड़े बच्चे भी स्केटिंग की तरफ इसलिए नहीं जा रहे होते कि गिर जाएंगे? बड़ा तो ठीक नहीं जा रहे होते ना, फिर उनकी चोटें ठीक नहीं होती। हाँ, ये बात है वैसे। हाँ जी, चोट तो बहुत दफ़ा लगी हुई है। एक दफ़ा मैं रेस भी कर रही थी तो मैं गिर गई थी। चोट इतनी गहरी नहीं लगी, बस पहले जब मैं एक दफ़ा कर रही थी तो मुझे नी पे चोट लग गई थी। तो मम्मा लोग ज़्यादा परेशान तो नहीं हुए, उनको पता था कि वापस उठ के कर लेगी, तो वो लोग ज़्यादा परेशान नहीं हुए। मैं भी बस ठीक ही थी, वापस स्केटिंग स्टार्ट कर दी। कितना टाइम लगा था? बिकॉज हमें लगता है कि शायद बड़ा मुश्किल है सीखना और महीनों लग जाते होंगे सिर्फ आपको बैलेंस करने में। 7 ईयर्स तक मैंने स्पीड स्केटिंग स्टार्ट कर दी थी। बाकी मतलब मैंने पहले बैलेंस पे काम किया था। और कितना टाइम आपको लगा था? बट बहुत छोटी थी, अब शायद आपको याद जी, 4 इयर्स की थी, तो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन 6 तक मेरा हो गया था। ओके, 2 साल। लेकिन ज़ाहिर है आप डेली नहीं कर रहे होते ना, आप वीकेंड्स पे जब भी आपको टाइम मिला भी। तो आई थिंक समर्स में थोड़ा ज़्यादा हमने देखा भी बच्चों को, जिस तरह समर कैंप्स लगते हैं उस तरह हम देखते हैं कि पेरेंट्स के बच्चों के टाइम होता है, या कह सकते हैं कि बच्चों को चाहते हैं कि उनकी एनर्जी चैनलाइज करें, तो इसलिए वो ऐसी किसी एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट करवा रहे होते हैं। देखिए, अब स्विमिंग की तरफ भी बच्चों को ले जाया जा रहा था कि स्विमिंग सिखाई जाए और साथ में वो भी एक एक्सरसाइज ही होती है, बिकॉज बच्चे हमारे आजकल के वो सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आइलीन, आपकी क्या रूटीन? तो आपने बताया कि किस तरीके से आप इसको प्लान करती हैं कि वीकेंड पे आप लोग करते हैं, बट ओवरऑल बिकॉज आप यूथ को रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे, कितना ज़रूरी है कि हमारे आज के बच्चे किसी ना किसी स्किल्स की तरफ जाएं, कुछ ना कुछ वो ज़रूर सीखें? और जाहिर है हर बच्चे में कोई ना कोई एबिलिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। जी, उनको जो भी एक्टिविटी करनी है तो ना उनको पहले उसमें मास्टर होना है, उसके बाद उनको जो भी करना है करें। एक्टिविटी जो भी करें तो फ़ोन गैजेट से तो दूर ही रहें, क्योंकि फिर वो आई साइट भी ख़राब करता है, विजन ख़राब करता है। तो मैं तो कहती हूँ एक्टिविटीज़ की तरफ ही आए सारे, और जिनको स्केटिंग करना है वो स्केटिंग करें, जिनको स्विमिंग करनी है वो स्विमिंग करें, और जो भी करना है तो वो अपनी एक्टिविटी करें। अपनी चॉइस है, आप बस एक चूज़ करें चीज़ वो करें।
अच्छा, क्या बच्चे घर पे ही स्केटिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं अगर थोड़ी स्पेस है आपके पास, या कि प्रॉपरली कोई आउटडोर फैसिलिटी का होना, किसी ट्रेनर का होना, एक इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है? इंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा ज़रूरी होता है, लेकिन क्योंकि अगर अलग करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा स्किल्स का भी नहीं पता होगा, स्पीड स्केटिंग भी नहीं होगी, हमें बैलेंस का भी नहीं पता होगा। वो थोड़ा थोड़ा शुरू में बताते हैं कि बैलेंस कैसे रखना है, हमें करवाते हैं छोटे राउंड्स और इस तरह बैलेंस वी शेप बना के सारा, तो इसलिए इंस्ट्रक्टर का होना थोड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप लोग थोड़ा जल्दी सीख लें स्केटिंग। ओके। अच्छा, ऐसे में सबसे छोटा बच्चा कौन सा है आपके उस कम्युनिटी में, उस ग्रुप में, जो हम कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, लेकिन जो एक बच्चा है मुझे बहुत क्यूट लगता है, उसका नाम मैं थोड़ा भूल गई हूँ, लेकिन उसकी एज शायद 3 या 4 है। ओके। 3-4 साल का बच्चा भी स्केटिंग करने आ रहा है जी एफ पार्क में। तो दैट्स वो भी इतनी उम्र में गई थी ना, उनको हाँ, आपको भी देख के वैसे कहते होंगे क्यूट क्यूट सी बच्ची। अब तक जो है वो सेम, आपके इंस्ट्रक्टर भी सेम ही है अभी तक जो पहले जी, थे? अभी तक सेम ही है। इतने सालों से सेम है। कराची में तो डिफरेंट है, कराची में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में वो डिफरेंट कराते हैं, कराची में डिफरेंट है। ओके। अच्छा, ऐसे में स्केटिंग और फिर आइस स्केटिंग बहुत डिफरेंस, बिकॉज़ ज़रा उसका तो सारा इक्विपमेंट ही डिफरेंट होता है। आपने ऐसे की आइस स्केटिंग? जी, मैंने एक दफ़ा आइस स्केटिंग F9 पार्क में की थी। कितना डिफरेंस महसूस हुआ? अच्छा, बाहर स्केटिंग करना या किसी ऐसी फैसिलिटी में जहाँ पे आइस स्केटिंग हो? मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आइस स्केटिंग में मतलब वो व्हील्स नहीं होते हैं, उसमें लाइन होता है। जी, वो ब्लेड होता है उसको। ओके, जो भी कहते हैं, मुश्किल चीज होती है। व्हील नहीं होता ना, ब्लेड होता है। हम तो उसमें भी बहुत गिरे हैं। मुझे लगता है कि बाहर वाली उसकी निस्बत थोड़ी सी शायद आसान है, आसान मैं कंपैरिजन टू आइस स्केटिंग कह रहा हूं। अच्छा, ओके। इसमें ज्यादा चोट लगी थी ना। अच्छा, ओके, अपनी बात कर रहे हैं आप, अपना अपना वैसे तजुर्बा बता सकते हैं। अच्छा, वैसे जिस तरह हम आइलिन से भी बात कर रहे हैं, आप लोग भी हमें बताएं ज़रा, हमारी सोशल मीडिया टीम भी ज़रा एक्टिव हो जाए अभी, और ज़रा मैसेजेस नोट डाउन करना शुरू कर दें, और आप हमें बताएं कि कौन सी स्किल आपने किस उम्र से सीखना शुरू की और किसको आप आगे परसू कर रहे हैं, और आप अपने बच्चों को कौन सी स्किल सिखाना चाहते हैं, क्या आपकी मेमोरीज हैं उसके साथ। इस हवाले से जो भी आज के दिन की मुनासबत से आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, नाम और शहर के साथ हमें व्हाट्सएप करें अभी, और हम आगे चल के अपने प्रोग्राम में आपके पैगामात शामिल करेंगे। एब्सोल्युटली। अब जरा हम बात करेंगे कि जो आइलिन ने इतनी चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने 2 बार पहली पोजीशन, 1 बार दूसरी और 1 बार तीसरी। हाँ, तो मैं पहली पे रहता हूँ ना। थोड़ा सा बताएं इन सारे इवेंट्स से मुतालिक, कहाँ पे इवेंट्स हुए, कितने इसमें पार्टिसिपेंट थे, और फिर जीतना उसकी तो खुशी अलग है। जी, ये F9 पार्क में ही हुआ था और 4 दफ़ा हुआ था ये। लाइक मैं जब यहाँ पर आई थी तो 7th चैम्पियनशिप था, तो मैंने जब पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया था तो मेरे मम्मा पापा नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि वो किसी काम से गए हुए थे, तो तब मैं अकेले थी। सिर्फ मेरी दोस्त की मम्मा वो मेरे चीयर कर रही थी, तो जब मैं अकेले थी मैं कर रही थी, और मेरी 3rd पोजीशन आ गई उनके बगैर। तो बाद में जब वो लोग आए तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे ट्रीट भी दी आइसक्रीम की, मुझे बहुत मजा आया। ये पिक्चर उसी वक्त की तो नहीं है? ये 1st पोजीशन जो अभी हुआ है चैंपियनशिप, अभी जो रिसेंट हुआ है। ओके, और ये भी F9 पार्क में हुआ था? जी, और ये मैं न्यू कैटेगरी में थी 11 to 14, लेकिन मेरी कंटेस्टेंट भी 15 इयर्स की थी, उसने चीटिंग की थी थोड़ी। चीटिंग कैसे होती है इसमें? लाइक कैटेगरीज होते हैं ना, 4 to 6, 7 to 10, तो मेरा 11 to 14 था, उसका वो 15 इयर्स की थी तो उसको 15 to 17 में जाना था, लेकिन वो 11 to 14 में आ गई। ग्रुप से क्वालीफाई कैसे कर लिया पता नहीं, वो सर उस तरह सही से चेक नहीं करते। ओके, चलिए ये गिला डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए सही तरह से, लेकिन जीत तो फिर भी आप गई जी। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। आपकी देखिए ये वो स्किल्स है ना आपकी, आपने उनको कितना निखारा है, ये मैटर करता है जी। ये चीज तो मैटर नहीं करती कौन क्या है जी। हाँ, चलें जी, आखिर में कोई अच्छा सा मैसेज लेते हैं मेरे ख्याल है आज के दिन की मुनासबत से। आइलिन, हमारी यूथ इस वक्त जो हमें देख रही है उसको क्या पैगाम देंगी? उसको मैं ये पैगाम दूंगी कि यहाँ पर पाकिस्तान में लड़कियों को ये लोग कहते हैं, डिस्करेज करते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ पढ़ाई मतलब किचन के सामान में होंगी, घर का सफाई करेंगी। तो मैं कहूँगी लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, वो ब्रेव भी हैं, पावरफुल भी है, स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो वो लड़कों के जितने ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं, वो जो भी एक्टिविटी करना चाहे, जो भी करना चाहती हैं, तो वो एक्टिविटी करें। जैसे स्विमिंग करें तो स्विमिंग भी करें, उनकी अपनी मर्जी है, और उनको किसी और के ड्रीम को पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। Absolutely, what a wonderful message you have. बहुत शुक्रिया आइलिन, साथ मौजूद थी आप। It was wonderful having you. बहुत आगे जाएं माशाल्लाह, जिस तरीके से आप यहाँ तक पहुँची हैं, और जो आपका ख्वाब है ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, तो वी रियली विश एंड होप कि ये हो और आप वहाँ पर जाएं, मेडल लें और दोबारा हमारी मेहमान बने इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
other than ہماری کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں خلیل الرحمان اور عبداللہ آصف, ان کو ہم نے آن بورڈ کیا اس پرٹیکولر ریسرچ میں. میں خود ڈپارٹمنٹ اسپیس سائنس سے ہے میرا تعلق. تو فار دس ایکچولی دس پریسٹیجیس ٹورنامنٹ, یہ پچھلے 5 سال سے یہ ایک گوگل سولوشن چیلنج ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. پاکستان کافی کلوز آیا تھا لاسٹ ایئر فائنلز میں, بٹ دے couldn't convert. بٹ دس ایئر ہم ایک نہیں 2 ٹیمز آئی تھی, ایک فاسٹ یونیورسٹی سے بھی آئی تھی اینڈ دین ہم IST سے بھی گئے تھے, اینڈ وی ون دا بیسٹ AI سولوشن ان ایشیا. دیٹ مینس کہ 5 سال سے ہو رہا ہے, پاکستان پارٹیسپیٹ ضرور کر رہا تھا لیکن اس دفعہ پاکستان گیا اور چھا گیا. ایسے ہی ہے. سو دوسری ٹیم پاکستان سے گئی تھی, انہوں نے بھی کچھ جیتا ہے. یس, سو ایکچولی دے کیم ان ٹاپ 10, تو وہ بھی ایک ٹاپ 10 سولوشن ہے. اچھا, تو آپ نے جو بات کی نا وہ سیٹلائٹ تصاویر, اس کا تجزیہ ہم چاہیں گے تھوڑا آسان کر کے بتائیں اس کو کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے ایک عام انسان کی زندگی میں, اس سے کیا فائدہ ہوگا. جس طرح چیٹ GPT کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب تو بہت ایزی ہے, ہر کسی کو یوز کرنا آتا ہے. تو سیٹلائٹ امیجری کی جو دنیا ہے, میں ہمیشہ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ یہ ہر پرٹیکولر انڈسٹری میں اس کی کراس اوورس ہو سکتے ہیں, چاہے ایگریکلچر ہو, چاہے سپلائی چین ہو, آئل اینڈ گیس ہو, ایون کلائمیٹ چینج بھی ہو. آپ سیٹلائٹ امیجری کو یوز کر سکتے ہیں ٹو کیلکولیٹ سوائل مائسچر, سوائل مطلب کراپ ہیلتھ, اوور آل فارسٹ کا کور, ایون فارسٹ لاس. تو اس کی کافی اگین آپ کے یوز کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ سیٹلائٹ امیجری کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ان ٹریڈیشنلی جو ایکسیس ہے ایسے ٹائپ کا ڈیٹا کے لیے فار ایوری ون از سم واٹ ہارڈ. آپ کو تھوڑا بہت ڈومین ایکسپرٹیز اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے چیٹ GPT کا زمانہ آ چکا ہے, تو آٹومیشنز اور ہمیں مطلب ہر انڈسٹری میں اس کی کراس اوورز نظر آ رہی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جنریٹیو AI یا ٹیکسٹ بیسڈ ماڈلس کو ہم سیٹلائٹ امیجری کی جو دنیا ہے, جو موسٹلی اوپن سورس ہے, اٹ از فری ٹو یوز فار ایوری ون, تو اس کو ہم کیسے ایز آف ایکسیسیبلٹی دے پائیں فار ویریس اسٹیک ہولڈرس. اور کتنا کوئک ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کے اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے لیٹس ایزیوم کہ ہم نے بلوچستان کے ایک پرٹیکولر حصے کو ہم نے سیٹلائٹ امیج اس کا لیا اور ہم اس کو اینالائز کریں کہ اس میں فارسٹ کور کتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے, انفراسٹرکچر. فار ایگزامپل ہم فلڈز میں دیکھتے ہیں جب کہ فلڈز کے فوراً بعد کیا سچویشن ہے, سو ہم کتنا ریئل ٹائم ڈیٹا لے سکتے ہیں, کتنا کوئک لے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو اینالائز کر کے پھر فوراً سے کوئی ڈیسیژن لے سکیں. بالکل. سو اگین ایز ارلی ایز یسٹرڈے کی امیج اگر آئی ہوئی ہو ایک پرٹیکولر سیٹلائٹ, اس اگر آربٹ میں یا اس ایریا کی کوریج لے رہی ہو, تو اٹ کین بی ایز ارلی ایز یسٹرڈے فار ایگزامپل. اچھا, تو اٹ کین گو وے بیک ٹو لیٹس سے 1970s ہسٹوریکل ڈیٹا. تو آپ ملٹی کیا کہتے ہیں ٹائم بیسڈ انالیسز بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے تھرو آؤٹ ٹائم, جیسے آپ نے کہا فارسٹ کور, ہم 1970 کا ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں. یس, اینڈ پریزنٹ ٹائم کا بھی. تو آپ دونوں کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. بٹ اگین بات یہ ہے کہ ایسے ڈیٹا کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا وہ کمپلیکس ہے, اٹ ٹیکس آورز. چیلنجنگ ہے کہ اتنا پرانا ڈیٹا بھی, اور اسپیشلی اب جب کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں, بیکاز ہم تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ایکوریٹ ہونا چاہیے, کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یس. سو بیسکلی اگین جیسے میں نے کہا کہ اس ڈیٹا کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو ہینڈل کرنا, اس کو ایٹ لیسٹ ایسی انالیسس جیسے فلڈ انالیسس کرنا, اس کو اٹ ٹیکس آورز ورتھ آف ورک. لیکن ہمارے بیکاز ہم کیونکہ AI کو استعمال کر رہے ہیں وتھ سیٹلائٹ امیجری اور اس کی ایکسیسیبلٹی کو ہم بہتر کرنا چاہیں, تو اٹ ٹیکس سیکنڈس ٹو ایکچولی compute such map layers basically. تو اگین ہمارے جو کور فلاسفی ہے اس پرٹیکولر گوگل ریسرچ کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ہم ایوری ڈے یوزرز, ایون یور سیلف کین ایکچولی یوز اینڈ سی سچ ڈیٹا سیٹلائٹ امیجری کا پلانٹری اسکیل پہ. اوکے, آئی مین مے بی آپ نے شاید کچھ بھی نہ کرنا, آپ سے دیکھنا چاہتے ہو. یس, مے بی شاید آپ انجوائے کریں اس کو دیکھ کر, اس ڈیٹا کو پروبیبلی. وائی ناٹ. اپنا اگین جیسے میں نے کہا کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ, آپ ڈفرینٹ والکینوز کو دیکھ سکتے ہیں, پری ایرپشن, پوسٹ ایرپشن. یہ تو آئی مین ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹ از. کیا سیکورٹی چیلنج بھی ہے اس میں؟ ایبسلیوٹلی. اگین جیسے میں نے کہا کہ اس کی کراس اوورز کافی ڈائیورس ہیں, تو جیو انٹیلیجنس میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اگین ایز آئی مینشنڈ ارلیئر, سیٹلائٹ امیجری موسٹلی جو ہمیں مل رہی ہے وہ اوپن سورس ہے. اگین ایکسیسیبلٹی کے بیریئرس تھے, تو اسی بیریئرس کو ہم اگین میٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو نیچرل لینگویج, کہ آپ صرف بتائیں کہ گیو می دا سیٹلائٹ امیجری آف XYZ لوکیشن. اس نے اس بیریئر کو ہٹا دیا بالکل. یس, یو کیڈ سے فردر امپروو کر دیا. ہم نے یہ اس آرکیٹیکچر کو جو ڈیوائس کیا, یہی ہماری گوگل ریسرچ تھی کہ کیسے ہم چیٹ GPT کو, لارج ڈیٹا کلسٹرز ہیں یہ سیٹلائٹ امیجری کی, یہ پیٹا بائٹس کے ڈیٹا ہے, اس کو کیسے ہم ایکسیس تھرو نیچرل لینگویج کریں وداؤٹ اے سنگل لائن آف کوڈ.
تو یہ نو کوڈ ایک انٹرفیس ہے. تو آپ نے اپنے خیال بتانا ہے کہ گیو می فلڈ میپس کوئی ہسٹوریکل ڈیزاسٹر کا, یا گیو می کراپ ہیلتھ یا ویجیٹیشن انڈیکس آف پنجاب فار ایگزامپل, پنجاب کے کسی علاقے میں. سو یو کین ڈو لاٹس آف تھنگز. اگین اٹ ریلی ڈیپینڈس کہ آپ کیسے سیٹلائٹ امیجری کو یوٹیلائز. اس پہ تو بڑا آسان ہو گیا نا کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں دریا نے کب راستہ بدلا. یس, کب راستہ بدلا رادر, بالکل, اور کہاں پر اس کو ہنٹنس کب ملی. جی یہ تو ہم بہت زیادہ اگر ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کریں اس کے لیے یوٹیلائزیشن بہت زیادہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اور ابھی کب تک اس کو پریکٹیکلی آپ لوگ لے کر آئیں گے, ہم کب یوز کر پائیں گے, ہم کب اس کو استعمال کر سکیں گے. اینڈ اسٹل جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فنڈنگ بھی اس کے اندر انوالو ہے. سو یس, وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جی بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہم رول آؤٹ کریں فار دا وائڈر پبلک اس پرٹیکولر پلیٹ فارم کو. یہ ایک اوپن سورس پروجیکٹ ہے, سو دس از فری ٹو یوز فار ایوری ون. اینڈ وی آر آلسو ڈائریکٹلی, جیسے آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کی, ہم ویریس اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ ایکٹیولی کولیبریٹ کر رہے ہیں. منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ ہم ایکٹیولی کولیبریٹ کر رہے ہیں, منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی کولیبریٹ. وی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو وزٹ بوتھ دا منسٹرز ایز ویل. وی ویری گریٹفل کہ جی اس اپرچونیٹی کے لیے. اینڈ آف کورس ہم نے جو انٹرنیشنل جو ٹورنامنٹ میں جو ہم نے شو کیس کیا ٹو دا ورلڈ کہ ہمارا اے آئی ٹیلنٹ کتنا پرومیننٹ ہے, دیٹ واز آلسو اے پراؤڈ مومنٹ فار اس. یہ جب ہم نے جھنڈا لہرایا اس مین اسٹیج پہ, تو اس سے زیادہ گریٹیفائنگ کچھ نہیں تھا. دی تھنگ اس کے پوٹینشیل کافی ہے, کراس اوور جیسے میں نے کہا کہ کافی ہیں. سو ویئر ایکٹیولی ہماری ٹیم از جسٹ اے 4, تو ہم ساتھ ری گروپ کر کے اس چیز کو فردر ڈیولپ کر رہے ہیں. ہر فیلڈ کی اگر بات کی جائے تو وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو کولیبریشنز کی جو آپ نے بات کی, آئی ایم شیور کہ اس کو بہت اچھے سے آگے ہینڈل بھی کیا جائے گا اور آپ کے اس پروجیکٹ کو سپورٹ بھی کیا جائے گا. اینڈ خوشخبری یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. اور چلیں میں کہتا ہوں فار ناؤ اگر ہم سب استعمال نہ بھی کر سکیں, سبین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ بھی اس کو فوری طور پہ یوٹیلائز کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ اس کو ہو سکتا ہے. ادارے کر لیں, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کام تو انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ تو اگر اس کا فائدہ ان کو ہو جائے گا تو ایکچولی فائدہ ہم سب کو ہو رہا ہوگا. اچھا, اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 4 آپ کے ساتھ 3 اور تھے, کیسے ڈیوائیڈ کیا؟ اچھا یہ کام اس نے کرنا ہے, اس میں یہ کام اس نے کرنا ہے, کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا؟ اس میں آپ کی پرٹیکولر سکلز, آپ کی اسپیشلٹی. سو آئی ایم ایکچولی دی ٹیم لیڈ فار جیوجیما, اینڈ آف کورس حنزلہ بن یونس اینڈ مائی سیلف, ہم اس پرٹیکولر گوگل ریسرچ کو الانگ سائڈ ڈاکٹر ساحل غفار صاحب ہم اس کو لے کے چل رہے تھے. ہم نے ایکچولی, میرا بیک گراؤنڈ سیٹلائٹ امیجری اور میپنگ بیسڈ اے پی آئیز کے اوپر ہے, تو ریموٹ سینسنگ اینڈ جی آئیز, جغرافیہ انفارمیشن سسٹمس, تو میں اس کا ڈیولپر ہوں. تو ہمیں اے آئی ایکچولی فرام اسکریچ سیکھنا پڑا. اینڈ دین اس پرٹیکولر ہم دونوں نے اس پرٹیکولر ریسرچ کو آگے لے کے گئے. اینڈ دین خلیل الرحمان از ایکچولی این اے آئی ڈیولپر ہمسیلف. اس نے ہمیں ڈپلائمنٹ کے اوپر اس کو آن لائن آپ سمجھ لینا کہ اس پہ مدد کی اے آئی آپریشنس پہ. اینڈ عبداللہ آصف از ایکچولی اے پروڈکٹ انجینئر, بیسکلی ویب ڈیولپر ہیں. تو انہوں نے ویب ڈیش بورڈ, یہ پرومپٹ بیسڈ میپ یو آئی جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ کام کیا ہے. سو یس, تو ہم مزید لوگوں کو بھی اب آپ ایڈ کریں گے, بڑھائیں گے. شور اپنا اگین ہماری کور فلاسفی یہی تھی کہ اگر ہمیں ایک ریسرچ گرانٹ ملا ہے گوگل کی طرف سے, تو وی وڈ وانٹ کہ ہم ینگسٹرس کو اپرچونیٹی دیں, آن بورڈ آئیں, گوگل ریسرچ کیسے ہوتی ہے وہ بھی آن بورڈ آئیں. تو عبداللہ آصف on the other hand is a second year student جو ابھی 3rd year میں ہے, he's just 19. تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم final year students ہیں تو مطلب ہم بھی like rather mature students کو on board لے کے آئیں. تو we gave opportunity. آپ نے کہا inclusive ہے جی, yes, اس میں ایج کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں بس اگر if you have the required skill تو آپ اس میں آ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے احمد کہ ہم بہت سارے پروجیکٹس دیکھتے ہیں یونیورسٹی, اسپیشلی فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس, بڑے اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں, نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی کمپیٹ کرتے ہیں اور بڑا اچھا ان کی پذیرائی بھی ہوتی ہے. بٹ ونس دا ڈگری از ڈن, یونیورسٹی از ڈن, دا پروجیکٹ از گون. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ویل دی تھنگ از کہ well there are various reasons. اپنا جو اسٹارٹ اپ ہمارا جو اوور آل ایکو سسٹم ہے, it is rather exciting of course, but it really depends on the student کہ وہ کیسے ایک چیز کو pursue further کرنا چاہیں گے. like for example ہماری کیس میں this is an open source project, تو اس میں contributions ہر کوئی کر سکتا ہے بیسکلی. تو اس کی ہم نے فاؤنڈیشنز بیسکلی لے کی ہیں, تو اس کی اسکیلیبلٹی جو ہے ڈاؤن دا لائن, اگین دس از free to use for everyone. مطلب یہ this is AI for social good basically. ہم یہ چاہیں گے کہ ایسا ڈیٹا ہر بندہ ایکسیس کرے,
اور فریلی ایکسیس کریں. تو اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ ان کے پرٹیکولر پروجیکٹس آر ایم فار واٹ انڈسٹری, لیکن دے کین سرٹنلی آلسو گو اوپن سورس کنٹریبیوشنز کافی ایک پرٹیکولر ڈومین کو فردر ایکسپینڈ کرتا ہے. اور زیادہ تر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں, فائنل ایئر پروجیکٹس ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے زبردست ہوتے ہیں, ان میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے, اور ہم بھی ان کو جب انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کب اب اس کے بارے میں مزید سنیں گے, کب کمرشل اس کا اینگل ہمیں نظر آئے گا, بٹ وہ غائب ہو بھی جاتے ہیں. بٹ سم ہاؤ بیکاز بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جب ہمیں فنڈنگ کے ایشوز ہیں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں, بعض اوقات ٹیم نہیں ہوتی ہے, بعض اوقات شعیب یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا پروجیکٹ کو وہ مزید میچور نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ ایکچولی میتھس کے لیے نہیں کر پا رہے ہوتے نا. وہ بڑا اچھا پروجیکٹ لگتا ہے آپ کو, ٹاپک بڑا اچھا ہوتا ہے, سولوشن اورینٹڈ, بٹ جب اب کمرشل پریپریشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک وہ ایک میتھس کے لیے چیز نہیں ہوگی تب تک اس کی یوٹیلائزیشن اس طرح سے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے. بٹ آئی تھنک دس پروجیکٹ از سم تھنگ جو کہ بہت پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل تو ہے اس میں. اینی میسج فرام یور سائڈ, اسپیشلی آج کے دن کی مناسبت سے جب ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں, اسکلس کی بات کر رہے ہیں. سو اگین اگر میں ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہی دوسرے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ہی ریلیٹ کر پاؤں گا, سو اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کو ڈیفینیٹلی اگریسولی گرانٹس کے لیے اپلائی کریں. سو اگین جیسے کہا کہ FIP اسٹوڈنٹ تھیسس کرنا ہی ہوتا ہے, اس کے بغیر ڈگری تو ملتی نہیں ہے. سو وائی ناٹ ہیو اٹ اسپانسرڈ بائی ون آف دا لارجسٹ کمپنیز لائک گوگل یا فیس بک اینڈ سو آن. اس سے آپ کو انڈسٹری اکیڈیمیا کی کولیبریشن شروع سے ہی ملنے لگ جاتی ہے, اینڈ مور امپورٹنٹلی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اس سے فردر آپ کو کریڈیبلٹی ملتی ہے آپ کے پروجیکٹ کو. اب ایک پرسنل گروتھ تو ہوتی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک نیشنل لیول پہ امیج بہتر بھی ہو رہا ہے. بالکل بالکل. تو اگین جسٹ اپلائی فار گرانٹس, ون ٹورنامنٹس اینڈ گرو اینڈ بلڈ. اور تھوڑا سا نا ایک براڈر پرسپیکٹو بھی ہم کہتے ہیں وہ دیکھنا بھی شروع کریں, آؤٹ آف دا باکس سوچنا شروع کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ گوگل, آپ بڑی بڑی کمپنیز کے پاس جا سکتے ہیں اگر آپ کے پروجیکٹ میں پوٹینشیل آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے. سو یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ٹرائی کریں. اپنے آپ کو ہم خود ہی بعض اوقات انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے بنایا, ہمیں کہاں جی فلانی کمپنی اتنی بڑی ہے, ہمیں کہاں فنڈ کرے گی. بٹ وہ اس طرح کے انیشیٹوس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جس کی مزید سکسیس جو ہے وہ ہم آگے چل کے ضرور دیکھیں گے. ہمیں تھینک یو سو مچ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اینڈ وش یو گڈ لک. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے. یہ تو بالکل پانی جیسا ہے. نہیں یہ پانی ہی ہے بیٹا. بیچ میں ٹریفک آ گئی, نہیں تو تیرا حال میں بہت برا. شکیلا جی کیا کر رہی ہیں, سب دیکھ. ریسیپشن پہ بہت ہی خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے. ہائے چودھری صاحب, مجھ سے حسین خوبصورت کوئی ہے؟ ڈوبا ابھرا ابھرا ڈوبا الجھا سلجھا ڈوبا. چلو آئیے آ جاؤ. میرا کاٹ چھوٹا ہے, ذرا پیار سے ذرا. دیوار کے پار کیا ہے, نقاب کے پار کیا ہے, اس بحث میں مت الجھو. صرف یہ جان لو کہ سمجھ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچ کی سیڑھی درکار ہوتی ہے. ایک ذرا سوچنے دو. کہیں بھی روشنی دیکھو, اسے آگہی مت سمجھو. 4 لفظ پڑھ لو تو خود کو ارسطو اور نیچے مت سمجھو.
मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो, अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर इतनी तल्ख जिंदगी के तजुर्बात, आपने मुस्कुराना क्यों नहीं छोड़ा? मुस्कुराना क्यों छोड़ूं? मैं तो लोगों को मुस्कुराना सिखाती हूँ। चैलेंजेस आते, चैलेंजेस से डरना नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आपके अंदर वो कुव्वत है और आपको अपने पे यकीन है, कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन डू एनीथिंग। कोई ऐसी सास होगी कि वो अपने प्रोडक्शन हाउसेस के नाम अपनी बहुओं के नाम पे रखे। मैं अच्छी सास हूँ, मेरी बहुएं सबसे अच्छी हैं। पीटीवी ने डायनासोर का इंतखाब क्यों किया है? ये कहानी सुनाने के लिए जेन जी जनरेशन को एक डायनासोर ही चाहिए था। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं सुबह सुबह फिटनेस के हवाले से, बिकॉज ये वो टाइम होता है जिसमें हम सबको मोटिवेट होना चाहिए। सुबह सुबह जब आंखें मलते हुए उठते हैं और इतने डीमोटिवेटेड होते हैं, सब तो दिल ही नहीं कर रहा होता कि पूरा दिन किस तरीके से अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। बस यही हो रहा होता है कि किसी तरीके से बस काम पे पहुंच जाए, अपनी नौकरी खत्म करें, उसके बाद बिस्तर में घुस जाए, या फिर असल ये होता है या फोन यूज कर लें या फिर टीवी के आगे। लेजी डे जो है वो तकरीबन हर डे ही, बहुत सारे लोगों का लेजी डे होता है। I don't think so because अगर आप जिम विजिट करें, अब जो हम कुछ सालों से ट्रेंड देख रहे हैं सभी, स्पेशली हम अपने यंगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, बहुत ट्रेंड हमें नजर आया है। लोग बड़ा फोकस कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, जिम भरे हुए हैं। हाँ, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें। अच्छा, अब ऐसे इस तरह के मौसम में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बल्कि बहुत से लोग जिम छोड़ देते हैं सावन में कि जी बरसात सावन नहीं जाना जिम। जी मसल हमारे कैसे मसल सोर हो जाएंगे, उसके बाद वो दोबारा से ठीक कैसे होंगे, हम किस तरीके से अपने मसल को रेस्ट दे सकेंगे, इंजरी होगी तो वो ठीक नहीं होगी, इंजरी होने के खदशात ज़्यादा हैं। ये बहुत सारे मिथ्स हमारे माइंड में ज़रूर चल रहे होते हैं। तो आज जरा हम डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो मौसम है, यानी कि हम मॉनसून की बात करें कि मॉनसून में किस तरीके से अपनी हेल्थ का हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से ये जो मिथ्स हैं हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, और क्या ये वाकई मिथ्स हैं या इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो केयर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, सो दैट अच्छे तरीके से आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। एंड ओवरऑल आजकल हम ये भी देख रहे होते हैं कि हर शख्स ही फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, फिटनेस ट्रेनर है। अच्छा, हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या फर्क होता है एक नॉर्मल ट्रेनर में और एक सर्टिफाइड ट्रेनर में, बिकॉज बहुत से भी जो ट्रेनर्स होते हैं बताते नहीं वी आर सर्टिफाइड ट्रेनर्स। तो हमारे पास एक सर्टिफाइड ट्रेनर मौजूद है, हम उनकी सर्टिफिकेशन से मुतालिक भी पूछेंगे कितना अरसा लगा और इसका कितना फर्क पड़ता है उनकी अपनी एक पर्सनल ग्रोथ में। वलीद अहमद इज विद अस टुडे, ही इज अ वंडरफुल ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप थैंक सो यू। गुड टू हैव यू वलीद। कितना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में? इट्स ऑलमोस्ट 6 years। ओके, 6 साल हो गए, और जो सर्टिफाइड हूँ मैं वो ऑलमोस्ट 3 साल से। ओके, आप बताएं क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल ट्रेनर में और एक सर्टिफाइड ट्रेनर में? अच्छा, जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें 3 साल जो मैंने ट्रेन कराया है उसमें और सर्टिफाइड में बहुत है, क्योंकि आपकी एक पूरी थ्योरी, पूरी एक हमने ट्रेन किस तरह करना है, फिर आगे पूरे बॉडी मैकेनिक्स, फिर आगे पूरी A to Z बॉडी की एनाटमी, वो सारी चीज़ें पढ़ कर फिर हम आगे जाते हैं। अब मैं खुद देखता हूँ ना, मैं 3 साल पहले किस तरह ट्रेन कराता था और अब किस तरह ट्रेन कराता हूँ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں ڈفرینٹ. اور بٹ یہ کہ سرٹیفکیشنز پھر آگے کرنا پھر آگے, کیونکہ پاکستان سے سرٹیفکیشنز ہوتی ہی نہیں ہیں. آپ نے سارا US UK ان سب سے وہاں سے اپلائی کرنا ہے, پھر ان کو سرٹیفکیشن کرنی, پھر ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, پھر ایک فٹنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے, وہ بہت ساری چیزیں پھر ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہے. پھر ایک ٹائم کے بعد جا کے پھر ایک اس پر آپ اس کرائٹیریا پر آتے ہو, پھر جا کے سرٹیفکیشنز آپ لیولز بھی ہوتے ہیں. یس لیول 1 لیول 2 لیول 3. آئی ایم لیول 3. پھر اس کے بعد ایک اور لیول ہوتا ہے لیول 4, وہ ماسٹر ٹرینرز ہوتے ہیں. وہ دنیا میں بہت یعنی مینس کہ وہ ایک سمجھ لو ٹرینرز کے بھی ٹرینرز ہوتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں گے ٹرینرز کو تو لیول 3 تک ہی دیکھیں گے. موسٹلی لیول 2 ہوتے ہیں, مگر آلموسٹ 10 to 20% لیول 3 ہوں گے. پھر اس کے بعد پھر جا کر لیول 4 وہ بہت کم ہے, یعنی وہ ماسٹر ٹرینرز ہیں وہ پھر 1-2% ہوتے ہیں. اچھا پاکستان میں اتنی اویئرنیس ہے ویسے لوگوں کو جو آ رہے ہوتے ہیں جم کے لیے؟ بیکاز ہم نے نہیں دیکھا کبھی وہ لیولز پوچھ رہے ہیں, وہ جب فٹنس انسٹرکٹر ہے ٹرینر ہے اس کے پاس بس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ویٹ لاس کرا دیں یا پھر ویٹ گین کے لیے, تو خیر بڑے کم لوگ ہی جاتے ہیں. دیکھیں اب ایشو یہ ادھر آتا ہے کہ اب جہاں جو میں اب ایک لوگوں کی مسٹیک بات کروں کہ لوگوں کو بس ڈائریکٹ اب 90% آپ کو پتہ ہر ایک کو ویٹ لاس. اب وہ یہ نہیں دیکھتے ویٹ لاس ہے تو وہ بس چلے جاتے ہیں. مگر اب جا کر اسلام آباد پنڈی میں ان میں لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہوئی کہ یار سرٹیفائڈ ہو, کیونکہ دے ہیو لائسنس ٹو ٹرین. ٹھیک ہے, جیسے آپ ایک گاڑی چلاتے ہو آپ کا ایک لائسنس ہوتا ہے, اس طرح سرٹیفکیشنز کا بھی ایک لائسنس ہوتا ہے, ان کا بھی ایک لائسنس ہوتا ہے ٹرین کرانے کا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہے بڑی میٹر کرتی ہیں ان سینس میں. ٹھیک ہے, اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم سرٹیفائڈ ٹرینر کے پاس جائیں گے تو ہمارے ریزلٹس اچھے آئیں گے اور لانگ ٹرم آئیں گے. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ بڑی ضروری چیز. ورنہ جو ویٹ لاس کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کامن سینس ہے, آپ کیلری ڈیفیسٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کا ویٹ لاس ہوگا, لیکن کس طریقے سے آپ جا رہے ہیں کیلری ڈیفیسٹ, یہ چیز میٹر کرتی ہے. اور کس کے لیے کون سا پلان سوٹیبل ہے. اور شعیب یہ بھی ہوتا ہے فلانے نے فلانے کو پلان دیا, آپ کی باڈی ٹائپ کے لحاظ سے وہ نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ویٹ لوز ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کھائی بڑا کم رہے ہیں, لیکن اوور آل جو آپ کی ہیلتھ پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, آپ کے باڈی آرگنز پہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا ولی 6 سال پہلے جب آپ نے اسٹارٹ کیا اس وقت جمز, اس وقت کی سچویشن, فٹنس کی طرف رجحان, اب کتنا فرق دیکھا آپ نے؟ بہت زیادہ. جو لاسٹ 1 to 2 ایئرز ہے اس میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. رجحان اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب لوگ جاتے ہیں. اب لوگ سمجھ لیں کہ اگر اپنی سیلری کا بھی 10 to 20% دینے کو تیار ہیں کہ یار ہم فٹنس, کیونکہ اب میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ مینس کہ اب موسٹلی میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, دے آر ابو 40 اور بارڈر لائنس پر ہوتے ہیں, یعنی کسی کو یورک ایسڈ, کسی کو کسی چیز کا ایشو, کسی کو بلڈ پریشر, کسی کو شوگر ہے, تو وہ پھر بارڈر لائن پر ہوتا ہے. وہ بارڈر لائن سے پہلے اگر آپ آ جاؤ گے تو آپ بالکل صحیح ہو جاؤ گے. ہاں, اب جیسے کافی میرے پاس ایسے ہیں جن کو شوگر تھی اور بلیو میں یہ بالکل ختم بالکل. اکثر بات کرتے ہیں غذائی بیماری, اگر آپ نے ڈائٹ کو بہتر کر لیا, آپ نے ایکسرسائز کو شامل کیا تو وہ ویسے ہی ریورس ہو جاتی ہے, کیونکہ انسولن ریزسٹنس آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. اچھا ولید اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں, جو ینگ پاپولیشن ہماری زیادہ اس کا رجحان آیا جمز کی طرف, وہ اس لیے ہے کہ وہ اچھا دکھنا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو لک گڈ, ٹرینڈ فالو کریں, چونکہ میرا دوست جا رہا ہے, چونکہ میرا بھائی جا رہا ہے, چونکہ فلانا جا رہا ہے تو میں نے ضرور جانا ہے, کسی پریشر میں جا رہے ہیں, جا کے انڈرسٹینڈنگ آئی ہے کہ نہیں مجھے ہیلتھ کانشیس ہو کے جانا ہے. اب لوگوں میں ہیلتھ کانشیس کی اویئرنیس آ گئی ہے, بٹ یہ کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں کہ یار اب ہم ایز اے فیلڈ بھی لے لیتے ہیں, کیونکہ اب اس میں سورس آف انکم اچھی ہے, اب اس میں آپ کو اچھا ارن کر سکتے ہو آپ. مگر یہ پھر وہیں بات آ جاتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ کے اٹس آل ڈیپینڈ آن یور شوق, آپ کے سارا شوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فیلڈ ویسی نہیں ہے کہ آپ سمجھ لو کہ آپ تنگ آ کر کرو گے تو وہ ٹھیک ہے, ہاں یہ سارا شوق ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس میں مطلب اچھی ارننگ ہے, سو واقعی کیا اپنی ہیلتھ پہ اتنی توجہ دینے سے آپ کما سکتے ہیں؟ یس کما سکتے ہیں. ہاؤ اپارٹ فرام دس ٹریننگ, آئی مین آپ لیولز کر لی آپ نے, پھر تو سمجھ آتی ہے, لیکن ایک انیشلی کیسے آپ کمائیں گے؟ دیکھیں اب انیشلی آپ اس سینس میں کمائیں گے نا کہ اب آپ مینس کہ اب آپ ہر کوئی تو جم سرٹیفائڈ ٹرینر افورڈ بھی نہیں کر سکتا, اور سرٹیفائڈ ٹرینر اب ایک نارمل جمس میں بھی وہ آپ ایز اے ٹرینر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت سورس آف انکم کم ہوتا ہے, مگر یہ کہ آپ کلائنٹ زیادہ لے لو, سمپل ایز اٹ از. وہ بھی کر سکتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم. جی جی انفلوئنسرز کو جیسے بھی ہم نے دیکھا نا کہ اچھا فٹنس انفلوئنسرز یا فار دیٹ میٹر فیشن انفلوئنسرز, اگر آپ پریزنٹیبل ہیں, آپ نے اچھا اپنے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے, جم شم جا رے ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے, تو آپ کو زیادہ پی آر کولیبریشنز مل رہی ہیں, وہ کپڑوں کی بھی آ رہی ہوتی ہے, پروڈکٹس کی بھی آ رہی ہوتی ہے. پی آر اب ہمیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یعنی مینس کہ آپ یہ سوچ لو کہ ایک ماہ کے اندر آدھے تو ہمارے ٹریک سوٹ سے ہمارے کپڑے پی آر سے آ جاتے ہیں, تو یہ بھی بہت اچھا ہے. نہیں اگر آپ کا پریزنٹیشن اچھی ہے, اگر آپ کا انسٹاگرام ہینڈل اچھا بنا ہوا ہے, تو پھر آپ کو کوئی چیز نہیں روکے گی, آپ کو یعنی آپ دیکھیں جم جانے سے ضروری نہیں کہ آپ نے پھر
फिटनेस सर्टिफिकेशन लेने के बाद ही कमाना है, आप सिर्फ जिम जाकर किसी और फील्ड में जो आप काम करें, मॉडलिंग है, एक्टिंग है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि इफ यू लुक गुड तो आपको ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल अगर रहे आपके होते हैं। हाइट का भी आपके पास काफी मार्जिन है। तो एनी हाउ, अच्छा इस मौसम के हवाले से अगर बात करें, मॉनसून के हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी हैं, उनको भी जरा क्लैरिफाई करें। एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम नहीं जाना, मसल सोर हो जाएंगे, रिकवरी कैसे होगी, इंजरी हो गई तो फिर क्या होगा, इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे, और ऐसे बेशुमार क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे अच्छा, माइंड हर में। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो मैंने अपने सारे 6 साल के एक्सपीरियंस में सब कुछ ये देखा कि ये दिस इज जस्ट अ मिथ्स, ठीक है। आप जाओ, ठीक है, आप अगर अपनी पानी की वाटर इनटेक अच्छी रखोगे, आप प्रोटीन इनटेक अच्छी रखोगे, आपको पता होगा कि आप क्या चीज़ खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते, इसमें कौन से मसले हैं, आप बिल्कुल बल्कि ज़्यादा परफेक्ट रहोगे, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होगी। आप अगर उसमें पानी की इनटेक अच्छी रखोगे, आप उसको अच्छा एब्जॉर्ब करोगे, ट्रेनिंग अच्छी करोगे, नॉर्मल। अच्छा, अब ये मैं नहीं कहता कि यार आप हैवी ट्रेनिंग करो इस मौसम के अंदर, आप एक नॉर्मल ट्रेनिंग, मैं तो वैसे भी किसी को हैवी ट्रेनिंग नहीं कराता। देखिए, बात यह है कि अब मैं फिर वही बात कर दूं कि आपके बॉडी के अंदर सबसे पहले मेन जरूरी क्या, आपका मसल। आपका मसल है तो आप 60, 70, इवन 80 इयर्स तक भी आप एक्टिव हो, आपका मसल है। अब मसल कैसे बनेगा? प्रोटीन इंटेक आपकी अच्छी होगी। अगर आपकी प्रोटीन इंटेक आप अच्छी ले रहे हो, आप अपने बॉडी परसेंटेज, आप बॉडी वेट के हिसाब से आप उतनी 1% भी ले रहे हो, वैसे तो आपने इंप्रूव करना तो 1.5%, अगर आप 1% भी ले रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी ग्रो करेगी। आपकी बॉडी में एबिलिटी होगी कि यार आप कोई भी चीज़ को ना आप उसको यानी टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब यानी आपने वेट लॉस की बात की थी, फैट लॉस की बात की, मैं एक साथ बात सेकंड कर दूं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जल्दी वेट लॉस करना होता है। अब क्या करते हैं, अब ट्रेनर्स का भी नहीं है कसूर, उन्होंने कहना जी हमें जल्दी वेट लॉस करो, वो हर दूसरे दिन तो वेट मशीन पर आ जाते हैं कि जी क्या करें, हाँ जी, शादी की डेट फिक्स होती है। हाँ, तो वो जी तो वो फिर ये सीन है कि अब वो तो इजी वे, बहुत इजी है। कब एक माह में 20-20 किलो भी कम करवा दो, आपने जस्ट सलाद पर रख दो, आप जस्ट ब्लैक एक महीने में 20 किलो, 20 किलो, मैं वो कह रहा हूँ अननेचुरली, मीन्स कि आप यानी जिस तरह से आप कहते हो कि यानी उसका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आप 20 kg अगर आप कम भी करा दोगे तो वो आपको दिखने में आप बिल्कुल जीरो लगोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में से सारा मसल गिर गया। आपने देखा होगा मोस्टली लोग जब 80, 90 से 60 पाते हैं तो उनकी स्किन लूज होती हो जाती है, स्किन सैगी हो जाती है। तो ये जो स्किन सैगीनेस आ जाती है ना, इसका कोई हल नहीं है। ओके, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन ये तो टाइम के साथ बेहतर हो जाता है, काफी लोगों के वैसे होती भी थी टाइम के साथ। अब देखें ना, आप यानी अब 4 साल 5 साल अगर नॉन स्टॉप रेगुलर करोगे तब हो जाएगा, या फिर आप सॉरी टू से अगर आप कोई मेडिसिन ले लोगे या कोई स्टेरॉइड्स ले लोगे उसमें हो जाएगा। मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ कि वही अगर आप 100 kg पर हो, अगर आप 80 kg आप नेचुरली 3 to 4 मंथ्स में करते हो विद प्रॉपर डाइट, तो उससे आपकी बॉडी दिखने में भी ज्यादा अच्छी होगी और आपको लगेगा भी यार कि आप बॉडी प्रॉपर शेप में है, ठीक है, आपके मसल भी लॉस नहीं होगा। ओके, अच्छा सप्लीमेंट्स में और स्टेरॉइड्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना, जब आप जिम स्टार्ट करते हैं एज पर योर बॉडी टाइप रिकमेंड किया जाता है कि अच्छा आप ये सप्लीमेंट ऐड करें, प्रोटीन ऐड कर लें, वे प्रोटीन ऐड करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अक्सर टर्म स्टेरॉइड पहले इंजेक्शंस का भी बहुत एक दौर चला था, सो डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस ये है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये हमारी समझोगे नेचुरल डाइट से ही है। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, आप क्रिएटिन ले रहे हैं, क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद जो वे प्रोटीन ले रहे हैं वो भी सब नेचुरल है। अब स्टेरॉइड्स ये है कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो आजकल इस पर रुझान जग गया है कि इन्हांस होना, हमने इन्हांस होना, हम बहुत जल्दी स्टेज पर चले जाए। मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि ना लें, बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा इसके नुकसान है। बट अगर कोई बंदा स्टेज पर जा रहा है, चलो उसकी फील्ड है ये, उसको उससे अर्निंग होगी, उसको करना, चलो वो फिर एक प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर हर चीज़ का उसको पता हो कि तब जाकर ले ले। मगर एक नेचुरल बंदा कभी भी स्टेरॉइड ना ले। और उसकी डाइट भी वैसी हो, स्टेरॉइड्स तो वैसे ही रिकमेंडेड नहीं होते, मेरे डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते हैं अनटिल अनलेस आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि स्टीरॉइड्स के बगैर हल नहीं हो सकती। अब तो इस तरह से इसके तो साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट्स देखें तो वो आपको जरूर दिखाई देते हैं। शॉर्ट टर्म आ जाते हैं ना, अब किसी भी चीज का लॉन्ग टर्म नहीं आता। अब आप सप्लीमेंट्स ले लोगे, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट्स आप क्यों ले, मगर एक चीज आपकी नेचुरल डाइट से पूरी नहीं हो रही। अब एक आपका विटामिन ई, विटामिन डी, अब नेचुरल हर एक बंदे का विटामिन डी का इशू आ गया, नेचुरल डाइट से पूरा नहीं हो रहा तो हम सप्लीमेंट्स पर ही जाएंगे ना। मीन्स कि हम मल्टीविटामिन्स पर जाएंगे, सप्लीमेंट्स पर जाएंगे कि हमारी डाइट अच्छी। और उसके बाद भी वही है कि अगर डॉक्टर रिकमेंड जरूर करें। अच्छा वलीद, एंड में ये भी हमें जरूर बताएं, इस सीजन के हवाले से
कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं जो कि आपको लेनी चाहिए, स्पेशली जो लोग शिकायत कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है काफ़ी और काफ़ी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हो रहे होते हैं, डाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई ड्रिंक्स, कोई खाने, कुछ आप रिकमेंड आप करें? कोई भी इवन के लाइट डाइट्स लें आप, जैसे ORS है, इट्स बेस्ट, सीधी बात है, इट्स बेस्ट। मैं कोई कहता हूँ ना कि यार चीप है हर चीज़ है, मगर इट्स बेस्ट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें हर चीज़ आपकी ना पूरी हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और जाहिर सी बात है वो चीज़ अब समझ लें कि उन लोगों के लिए जो बीमार होते हैं, तो आप सोच लो कि उसमें कोई इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, सिंपल शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। फिर आगे नींबू पानी में शुगर नहीं है ऐड करनी, आप सिंपल नींबू पानी ले लो, आप सिंपल कोई से भी फ्रूट्स का शेक्स ले लो, ठीक है। आप थोड़े एनर्जी स्मूदीज ले लो, ठीक है। जूसेस इतने ना लो क्योंकि जूसेस में सारे फ्रैक्टोस होते हैं, तो फिर वो सारी शुगर आ जाती है। फिर लोग कहते हैं फ्रूट जूसेस हम फ्रेश होते हैं, बट फ्रेश की नहीं है, बट सारी शुगर ऐड हो जाती है। एक्सरसाइज कर ले मानसून में, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू। दैट्स ग्रेट वली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। और बड़ी जबरदस्त बात कि एक तो है कि एक्सरसाइज करें और ये सोच के करें कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आप अंदर से अच्छे होने चाहिए। जब आप अंदर से अच्छे होंगे तो आप वैसे ही अच्छे लगेंगे, यू विल फील गुड एंड देन यू लुक गुड। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि ठीक है लोगों के लिए हो जाए, फिटनेस पे ध्यान दे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स और ये सारी कुछ चीजें, सप्लीमेंट इज फाइन अगर इफ इट्स रिक्वायर्ड, हाँ अगर वो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये स्टीरॉइड्स और इन तरीकों की तरफ ना जाएं, अननेचुरल वे पे। लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग ही कह रहे हैं, ठीक है आपको 4 लोग कह रहे हैं ना आपका पेट निकला हुआ है, हाँ निकला हुआ है, प्लीज आज ही वर्कआउट शुरू करें, अभी तो अंदर करें, बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। बहुत शुक्रिया वलीद, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा, गार्लिक राइस ओके और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का, हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसका जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए? इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। नरगिस बेगम। नरगिस के बाद बेगम लगाने का हक तुम 25 साल पहले ही खो चुके हो। मेरी वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा देना भी चाहिए। पहले अच्छी तरह चेक कीजिएगा, फिर कार्रवाई कीजिएगा। अब लगेंगे ताले तुम्हारे रेस्टोरेंट पे। आंखें भी खुली हैं, मुंह भी खुला, कहीं गुजर तो नहीं है। तू क्या कर रहा है इधर? सोच रहा हूँ। चल बाहर जाके सोच। मेरा दिमाग यहीं चल रहा है। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा मैं। हस्ती अपनी अहबाब की सी है, ये नुमाइश
शराब किसी है। मेरा प्यार ठुकराया था ना, अब मेरा इंतकाम देख। वो मेरा कारोबार है, तुम मेरा प्यार हो। कारोबार और प्यार को अलग अलग रखना चाहिए। गन किसको दिखाते हैं? ऐसी की तैसी की। प्यार का तड़का। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम सुबह से ही सुबह जो कि बहुत सारे लोगों की नहीं हुई होगी, लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी यूथ को, हमारे नौजवानों को हम स्किल्स की तरफ ले जा सकते हैं, यूथ को जगा सकते हैं। जगाना भी एक स्किल है और ये स्किल सिर्फ अम्मी के पास है, और वो आप सब समझ सकते होंगे वो किस तरह से फिर जगाती है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यानी हाँ, किस तरह से हम यूथ को एंगेज कर सकते हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो कि वो स्किल सीख सकें। और अब हम ओवरऑल अगर देखें पूरी दुनिया में जहाँ पर पढ़ाई है, हम कहते हैं कि ठीक है आप अपनी पढ़ाई ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ आप स्किल ज़रूर सीखें। और अब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, पहले तो हम सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ का कर रहे होते थे ना कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो हम कोई स्किल सीखेंगे और फिर हम नौकरियां ढूंढेंगे और फिर हम नौकरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो पढ़ाई के साथ अगर आप स्किल नहीं सीख रहे होते तो सवाल आपसे किया जाता है कि आपको स्किल क्यों नहीं आती। एब्सोल्युटली, अब तो ये भी है ना कि आप पढ़ाई के साथ स्किल और फिर आप जॉब्स ढूंढने के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप खुद अर्न कर रहे होते हैं, बट आप एट द सेम एज एन एंटरप्रेन्योर आप जॉब्स क्रिएट भी कर रहे होते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप, किस तरह से जॉब्स ढूंढ सकते हैं, और कैसे यूनिवर्सिटीज इसमें रोल प्ले कर रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, क्योंकि वही वाली बात है कि किस तरीके से अब टीचिंग मेथड्स बदल चुके हैं, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ की प्रायोरिटीज़ भी बहुत हद तक बदल चुकी है, और ये बड़े पॉजिटिव तरीके से बदली है कि कैसे हम यूथ को स्किल्स की तरफ लेकर जाएं और उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। तो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नस्ट में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर एडवांसमेंट और हेड ऑफ ग्लोबल एंगेजमेंट के तौर पर खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रही हैं अरूबा गिलानी साहिबा, और तमगा इम्तियाज़ भी आपको मिल चुका, और पहले भी हमारे प्रोग्राम में वो आ भी चुकी हैं। पाक जापान सेंटर के वाइस हेड भी हैं, ये भी उसके अंदर ही है, तो हम उनको वेलकम भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जो डिपार्टमेंट है या उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरह से फ़रोग़ दे रही है स्किल्स को। तो अरूबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक सो गुड टू हैव यू अगेन जी, सो गुड टू हैव यू। अरूबा, थोड़ा सा बताएं कि आज के दिन की मुनासबत से हम जरूर बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है, जो हम यूथ और स्किल्स की बात करते हैं। तो बिल्कुल, पहले तो जी थैंक यू वेरी मच फॉर एक्नॉलेजिंग दिस डे, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ हम एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ हमें स्किल्स को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसके दो वजूहत हैं। एक तो ये कि बिल्कुल हमें देयर इज़ नॉट, एवरीबडी इज़ नॉट एजुकेटेड इन पाकिस्तान, लेकिन ऑब्वियसली उनको दे आर गोइंग इनटू अनएम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग। तो आप उनको जब तक स्किल नहीं सिखाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू अर्न फॉर देमसेल्व्स। इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दैट एजुकेशन इनटू something which you can translate it into your theory, into your practice, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। So skills are required at every stage and at every level for every type of segment of our population. So ये this is extremely very important. अब इसके अंदर नस्ट का क्या रोल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नस्ट में हम लोग बहुत इसको सोच के, हमने समझ के इस चीज़ को हमने डिज़ाइन किया है कि क्योंकि नस्ट इज़ एन इंस्टीट्यूट, और इसको बड़ी ही लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर फैक्ट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक प्रोडक्ट डेवलप होता है, राइट? उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि वो सेलेबल हो इन द मार्केट। अब इतने ज़्यादा इंजीनियर्स और इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स, सोशल साइंसेस के भी, हर तरह के डिसिप्लिन के, इवन मेडिसिन के आपके ग्रेजुएट्स हो रहे हैं एवरी ईयर, क्या वो सब एम्प्लॉय हो रहे हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन। अब उनको एम्प्लॉयबल करने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उनमें डालने की ज़रूरत है? जाहिर है कि वो एक तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंटर्नशिप्स के थ्रू भी इंश्योर। सो 100% इंटर्नशिप्स हम नस्ट में हमारी एज़ पर द पॉलिसी, अब HEC ने भी कहा है कि एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए, ताकि बच्चों ने जो पढ़ा है यूनिवर्सिटी के अंदर, दे शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट इन द इंडस्ट्री। सो ये एक तो उनको स्किल सेट, रेडी स्किल सेट graduates should be available for the industry to be absorbed.
एक तो इंटर्नशिप्स का रोल है, देन वी हैव फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आई कैन नॉट इवन स्ट्रेस के कितने इम्पोर्टेंट हैं एक ग्रेजुएट के लिए जब वो एक डिग्री लेने के लिए जाता है. जो भी उसने पढ़ा हुआ है उसके अंदर वो इनोवेशन को इंटीग्रेट करता है, अपने मेंटोर्स के जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको इंटीग्रेट करता है, और फिर उससे वो एक नए प्रोजेक्ट या नया प्रोडक्ट या नई इनोवेशन एक लेके आता है इन द मार्केट, और फिर उसको वो प्रेजेंट करता है टू द इंडस्ट्री. इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें आप जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट, अगर आप उसकी कोई सोल्यूशन उससे कोई डिराइव करके नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं इन द इंडस्ट्री या इन द सोसाइटी, तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो दैट्स द होल पॉइंट. तो हमारे यहाँ ये इसके ऊपर बहुत, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं होती अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की, अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं किया, आपको डिग्री ही नहीं मिलती उसका कोई, क्योंकि उसका मकसद यही है ना कि एज जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, you should be able to be employed or you should be able to have a startup of your own. Okay. तो तभी होगा जब तक आप you will not be able to, you know. अब तो जाहिर है बहुत सारी डिग्री आपको नहीं मिल रही होती, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो नहीं देते, क्योंकि आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना होता है, और जाहिर है उसी में हम बड़ा टैलेंट भी देख रहे होते हैं. बिल्कुल. उसी में पता चलता है कि हमारी यूथ में कितना टैलेंट है. और इससे पहले भी हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और उनका भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जो कि वो लेकर गए हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने प्राइज़ भी विन करवाया. इसी तरह से बहुत सारे हमारे और यंगस्टर्स हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, क्या यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट पे इस तरह तवज्जो दे पा रही होती है? बिकॉज डिग्री तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलती जब तक वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना नहीं. तो किस तरह से इस यहाँ पर मेंटोर्स का रोल आता है कि वो प्रोजेक्ट्स ऐसे डेवलप करवाएं जो कि वाकई इनोवेशन की तरफ जा रहे हो, एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल पे उसकी एक्सेप्टेंस भी हो, और उसके बाद इतनी स्किल्स जो है वो डेवलप कर दे यूथ के अंदर कि वो मार्केट के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि उनको जॉब मिल जाएगी. बिल्कुल, आपका योर क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, बट मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा कहूँगी कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की भी है. हम टीचर्स तो, या हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल हम पॉलिसीज़ भी बना लेते हैं, टीचर्स को भी हम ज़ाहिर कहते हैं कि वो बच्चों को इन्वॉल्व करें और इंश्योर करें कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हों. बट स्टूडेंट लेवल के ऊपर अगर आप एक चीज़ देखें कि इस चीज़ कॉमनली आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट है वो इतना सीरियस नहीं होता. मास्टर्स लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो होता है वो सीरियस, वो क्यों सीरियस होता है? वो रियलाइज कर चुका होता है कि नो मैटर हाउ मेनी डिग्रीज आई गेट, अनलेस एंड अनटिल मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ इनटू द मार्केट नीड, मुझे किसी ने नहीं लेना. इट्स लाइक मैंने पहले भी बताया था, इट्स लाइक एनी अदर मार्केट. ठीक है, देयर आर प्रोडक्ट्स, सो देयर आर ग्रेजुएट्स इन द मार्केट. अब आप उन्होंने पिक एंड चूज उस बंदे को करना है जो कि उसको सोल्यूशन दे, जो उसको सोल्यूशन दे. आप जितने मर्जी अच्छे इंजीनियर हो जाएं, अगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू. ऐसा ना, चाहे आपके जितने अच्छे मार्क्स हैं, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, जो मर्जी आप कर लें, जब तक आपने सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखी, आपको मार्केट पिक नहीं करेगी. इंटरव्यू भी आपसे ये नहीं पूछ रहे थे किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट, मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे, मैट्रिक में, क्योंकि हमारे मैट्रिक के नंबर बड़े मैटर करते हैं आगे चल के. अब आपको पता है जितनी अच्छी बड़ी एमएनसीज हैं और जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो आपसे डिग्री भी नहीं पूछते. आपका डिग्री मींस आपका डिसिप्लिन नहीं पूछते, राइट? व्हाट दे वांट इज योर राइट एप्टीट्यूड एंड हाउ वेल यू आर एबल टू ट्रांसलेट योर नॉलेज इनटू योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेबिलिटी. इस तरह नहीं है कि अब आपके पास अगर एक डिग्री है तो बस दे विल हायर यू एंड स्टफ. नो, नहीं, वो दौर चला गया जब कहते थे अब फलां यूनिवर्सिटी में अगर चले जाओगे, एडमिशन हो जाएगा तो आपको ड्यूरिंग डिग्री ही जॉब मिल जाएगी. मिल जाती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मिलती. बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन उसमें वो वही बच्चे होते हैं ना जिनका राइट एप्टीट्यूड होता है, जो सिर्फ इसलिए नहीं आए हुए होते कि जिन्होंने किसी और से इंस्पायर होकर बस वो फॉर द सेक ऑफ हैविंग डिग्री दे आर हैविंग देयर डिग्री, यू नो. वो उसमें उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं और उतने ही इन्वेस्टेड होते हैं. आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ आवर ओन ग्रेजुएट्स. सो देयर इज अ ग्रेजुएट जिसने हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से उसने ग्रेजुएट किया, और उसने एनिमेशन के थ्रू उसने एजुकेशन के ऊपर स्टार्टअप अपना क्रिएट किया तालिमाबाद के नाम से. 1000+ स्कूल्स में वो अब हो रहा है. इट इज रिकॉग्नाइज्ड, इट इज, और उसमें क्वींस यंग लीडरशिप अवार्ड उसको मिला है, यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है. सो मैं आपको मतलब ये अब उसको डिग्री में किसी ने नहीं बताया था कि आप इस तरह का कोई एक चीज, बट इट इज द वे जो उसने सीखा अपनी डिग्री के दौरान, उसने उसको एक गैप देखा और उस गैप को आइडेंटिफाई करके उसने उसके अंदर सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि हाउ यू कैन टीच, यू नो, छोटे बच्चों को आप कैसे एजुकेशन की तरफ, या क्या क्या कौन से कॉन्सेप्ट्स आप थ्रू एनिमेशन सिखा सकते हैं. दैट वाज द गैप. अच्छा, अब ये कितना जरूरी है कि थोड़ा सा ये रुझान भी यूथ का बदला जाए, क्योंकि काफी हद तक मैं देख रही हूँ काम भी हो रहा है इसके ऊपर कि
एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं, जॉब क्रिएट करें। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि किस तरह से, लेकिन फिर उस तरफ डर के भी नहीं जा रहे होते कि चले नौकरी है तो चले नौकरी तो एक सस्टेनेबल है तो ठीक है, हमारी एक स्टेबल इनकम है, रिश्ता लेके भी जाना होता है ना, हम नौकरी को तो जाएंगे। और अगर अपना कोई काम शुरू करते हैं तो ये डर हो रहा होता है कि अच्छा कोई स्टेबल इनकम नहीं होगी, कैसे हम इसको सस्टेन कर सकेंगे, भी काफी सारे डर हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप इस स्टेज पे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप कब लेंगे? एब्सोल्युटली। यू विल नेवर बी एबल टू टेक रिस्क एज जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे। बिल्कुल। मतलब 50 साल की उम्र में तो लोग कम ही रिस्क लेते हैं, 50 20 साल की उम्र में तो आप ले सकते हैं, 40 में नहीं लेते। मेरे कहने का मतलब है कि आप अभी तो आपके यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, सो व्हाई नॉट जस्ट टेक अ रिस्क। यू सी, और इस वक्त का जो लेवल होता है ना ऑफ एंथुसियाज्म, ऑफ पैशन जो आपका, वो होता ही डिफरेंट है। वो एनर्जी डिफरेंट होती है, उसके बाद तो एब्सोल्युटली। लेकिन देखिए दो एक्सट्रीम्स है ना, एक है कि हम कहते हैं कि जी वो एनर्जी डिफरेंट होती है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आपने खुद भी मेंशन किया जो कि बाकी बड़ी दुरुस्त बात है, नॉन सीरियस एटीट्यूड भी है अंडर ग्रेड्स का। अब ये वजह क्या है, नॉन सीरियसनेस क्यों है? मैं आपको बता, उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप मैट्रिक करते हैं और एफएससी करते हैं, आपके मार्क्स आ जाते हैं, यू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, और आप 4 साल उसी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड दैट्स वेयर यू नो योर डाउनफॉल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। अगर आपके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आए, गुड, अगर आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स आए, गुड, बट आपकी मंजिल जो है ना वो यूनिवर्सिटी नहीं थी। आपकी मंजिल है कि हाँ एग्जैक्टली, वो तो सिर्फ एक पाथ है जो आपने लिया है, जहां आपने पहुंचना है उसके लिए अभी बहुत देर है। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू बी फोकस्ड। हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, समटाइम्स आप वैसे ही आपको होता है कि मैंने बस अचीव कर लिया, दिस इज वेयर आई वांटेड टू बी, बट देन दैट्स नॉट द एंड। यू नो, लाइफ एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम देयर। So, जैसे ही आप पास आउट होते हैं, एक्चुअल लाइफ तो आपकी वहां से शुरू होती है। उसके लिए बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। और ऐसे में पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज करना बहुत जरूरी है। देखिए चीज शुरू घर से होती है रुबा, कि घर में बताया जा रहा होता है तुमने पोजीशन ली तो बस तुम तो ऐसी नालायक हो, इस तरह के हम सुन रहे होते हैं। घर के अंदर से कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं कि जी फलाने ने इतने नंबर लिए, तुमने नंबर नहीं। तो बच्चे के लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ही है कि उसने रटना है, रटे रटाई चीज़ों को लिखना है, और उसके बाद उसने इतने नंबर लेके आने, और उसके बाद उसके पेरेंट्स, घर वाले, खानदान में वाह वाह, वो सेलिब्रेशन वहीं से तो शुरू होती है। और फिर उसको ख़त्म करना, रियलिटीज़ की तरफ लेके जाना, ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये देखें ना कि वो पेरेंट्स भी कहाँ, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, यू नो, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर, जहाँ पे वो कोई एक साहब होते थे, उनके कज़न या कोई जो एक टॉप कर लेते थे, फिर वो CSS कर लेते थे, फिर वो ऑफिसर बन जाते थे स्टाफ, तो उन्होंने तो वही देखा। अब जो है ना, थिंग्स हैव चेंज्ड। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मैट्रिक में अच्छा नहीं किया, आप एफएससी में अच्छा कर लेंगे, आप बैचलर्स में अच्छा कर लेंगे, या फिर आप में स्किल ऐसी आ जाएगी। अच्छा, इस पे भी ना थोड़ा सा लेट्स स्ट्रेस अपॉन दिस, स्किल्स भी जो है ना वो हर लेवल पे डिफरेंट है। ठीक है, और एक आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं और एक आपकी सॉफ्ट स्किल्स। इंटरेस्टिंगली आपके अबाउट 30 to 40%, ये स्टैट्स कहते हैं, अबाउट 30 to 40% आपको डिग्री पे जॉब मिलती है। However, about 60 to 70% आपको आपके स्किल सेट के ऊपर जॉब मिलती है। तो आप ये देख लें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। अच्छा, इसमें जो 60 to 70% स्किल है, इसमें टेक्निकल स्किल्स कितनी मैटर करती हैं और सॉफ्ट स्किल्स कितनी मैटर करती हैं? So it really depends upon the job. Yes. ठीक है, आपकी टेक्निकल नो हाउ शुड बी एक्सेप्शनल, बट अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है एंड दो सॉफ्ट स्किल्स वर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, you may not be able to excel well. ठीक है, so for example मतलब negotiation skills हैं आपके पास जितनी अच्छी technical skills हो जाए, if you're not able to break the deal, you're not able to break the deal. And then if you don't have the communication skills, आप communicate ही नहीं कर पा रहे, डिग्री बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, टेक्निकल स्किल्स भी हैं, आप बता ही नहीं पा रहे हो। Exactly. और कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो आपको लगता है काम उस तरीके से नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, एक आपको एग्जांपल देती हूँ, ये ज़ाहिर है द व्यूअर्स के लिए भी बड़ी इंस्पायरिंग हो सकती है। सो देयर इज दिस वुमन फारा ग्रे, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट हर। she wasn't educated, raised by a single mother, और अमेरिकन बॉर्न। 9 साल की उम्र में उन्होंने पेंटेड स्टोन्स बेचने शुरू किए, बिकॉज शी रियलाइज्ड दैट शी वाज गुड एट दिस, एंड देन शी स्टार्टेड सेलिंग, एंड थ्रू हर only selling skills and then later on negotiating skills, at the age of 14 she became a millionaire. At the age of 14.
वाओ 14 साल की उम्र में सिर्फ 14 साल की जब हम सोच रहे होते हैं कि हमने करना क्या जिंदगी Exactly. सोच भी And नहीं now रहे she has written books. She's a celebrity now. तो मेरे ये आपका एक तो आपका एप्टीट्यूड होता है, फिर आप देखते हैं कि अच्छा किसी भी स्किल जो आपके है ना उसमें ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर डाली है. You need to build on that. ठीक है, you need to understand कि आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो कि सेलेबल हो सकती है. वर्क ऑन इट. There are people जिनको for example there are people who are good in arts. There are few skills जिनको आप you can teach those skills, but there are few skills जो आपके inborn भी होती हैं. So try to figure out that as well. Sometimes you're actually a very good negotiator and that's natural. Or you're a very good salesman, you have those selling skills. Yes. And उस पे शायद आपको किसी ने नहीं groom किया, but you're just able to communicate well. Yes. तो ये वो चीजें हैं जिस पे I think you need to all the graduates need to work on it. अच्छा ये कितनी आजकल का एक प्रॉब्लम है कि लिंक्स पे काम हो जाएंगी जी. हमारे चाचा वहाँ पर होते हैं तो हमें इसलिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, स्किल सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फलाना वहाँ पर होता है. और क्योंकि ये भी जो हम यंगस्टर्स की बात करें, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें, उनके जहनों में बिठा दिया जाता है कहीं ना कहीं, या खुद से उनको लगता है कि हम तो जी फलाना हमारी सिफारिश कर देगा और हमारी तो वहाँ पर फलानी नौकरी लग जाएगी. ये कितना डैमेजिंग है? देखिए वी कंफ्यूज रेफरल्स विद सिफारिश. ठीक है, हमें रेफरल्स ज़रूर चाहिए होते हैं. हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आस्क फॉर रेफरल्स और उसमें सिर्फ ये होता है कि वो आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे होते हैं. दैट्स इट. ठीक है, सिफारिश जो है ना वो आपको सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक लेके जाएगी. सस्टेन आपने करना है. सस्टेन नहीं आप कर पाएंगे एंड देन उस जिसने सिफारिश किया उसके लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है और जो कर रहा होता है जॉब उसके लिए भी एम्बैरेसिंग एंड डैमेजिंग सिचुएशन हो जाती है. और मैं बताऊं जॉब मार्केट पाकिस्तान में और ग्लोबली एवरीवेयर, अब तो लिंक्डइन का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, आप सर्च करें आपको आपके बारे में प्रोफाइल आ जाता है. इट डजंट रियली रिफ्लेक्ट अ गुड रेपुटेशन ऑफ योर्स. सो अगर आपने कोई इस तरह की कोई चीज़ की है, पीपल इवेंचुअली फाइंड आउट. सो वी शुड नॉट डू दैट. आप अपने ऊपर काम करें. और आई मीन ये उनके लिए भी जरूरी, उनको कॉल आती है ना कि यार प्लीज वो उनके लिए कॉल तो कर दें, वो फलाने को कहते हैं आप वहीं बैरियर बन जाए करेंगे, भाईजान खुद करो, ये बड़ा जरूरी है. अच्छा एक और चीज भी, यूनिवर्सिटी इस मामले पे काम करते हैं कि वो स्टूडेंट को देखते हैं कि अच्छा ये आ तो गया है इस डिग्री में, इस डिसिप्लिन में, लेकिन ये इसका एप्टीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है, इसको शायद ये नहीं करना चाहिए. क्या यूनिवर्सिटी इस पे काम करती है? अच्छा इस पे ना ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मैंने 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस पे हमने काम किया है पर्सनली, मतलब मैंने इन्वेस्ट करके किया. और उसमें यही था कि हम लोगों के यहाँ जब नास्ट एंट्री टेस्ट होता है तो उससे पहले हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसमें कि यू गो थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है. उसका फायदा ये है कि जब आपने डिग्री सेलेक्ट करनी होगी तो आपको आसानी होगी. और उससे अच्छा फायदा ये है कि फिर जब आपको जॉब प्लेसमेंट करनी होगी तो इट विल बी इजियर फॉर द एम्प्लॉयर टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट आपका एप्टीट्यूड ये है, फिर उसके साथ अलाइन करते हुए आपने डिग्री ये ली है और बीच में आपकी जो ग्रूमिंग का इकोसिस्टम जो हमारा है उसमें जो आपकी ग्रूमिंग हुई है, इवेंचुअली यू आर द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. सो दिस इज एन एंटायर प्रोसेस जिसके ऊपर हमने काम किया. नॉट जस्ट दिस, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऐप बताऊँ जिसके ऊपर वी आर वर्किंग, बल्कि वी आर जस्ट अबाउट टू लॉन्च. उसका नाम है नेक्स्ट. उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जितना जो भी इकोसिस्टम नस्ट के अंदर है, व्हाटएवर वीव एस्टैब्लिश्ड, जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप्स, हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, हमारे कॉम्पिटिशन्स, हमारे स्टूडेंट्स क्लब्स एंड सोसाइटीज़, एनीथिंग जो भी हम बच्चे को पढ़ाई के अलावा करवाते हैं, उसको हमने जो है वो नोट करना शुरू कर दिया है. एक सिस्टम के थ्रू हमने उसके अंदर एम्बेड कर दिया है कि यू हैव टू रजिस्टर दैट थिंग. और उसका बैक एंड के ऊपर हमने लॉजिक डाल दिया है कि विच आर दोज 15 स्किल्स जो कि वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड हैं बाय द टॉप एम्प्लॉयर्स, वो कैसे इन तमाम चीज़ों के थ्रू उस बच्चे में इनकलकेट हो रही हैं. सो यू अंडरस्टैंड, दोज 15 स्किल्स वी हैव आइडेंटिफाइड और यहाँ हम उस बच्चे को इकोसिस्टम दे रहे थे. अब हम वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपका एडवेंचर क्लब है. एडवेंचर क्लब से वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि उसके अंदर वो स्किल सेट डेवलप हो रहा है एंड अलाइनिंग दो स्किल सेट विद दोस 15 टॉप स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द टॉप एम्प्लॉयर्स. सो जितना भी टाइम वो नस्ट में गुजार रहा है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी एक पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है उसको हम एक्चुअली गेज करके एंडोर्स करके उसको एक अलहदा से सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ अ चीज़ देंगे.
आई डोंट वांट टू एक्चुअली टेल द एंटायर थिंग, बट वो जब हम लॉन्च करेंगे लेकिन चलिए, आपने इंशाल्लाह, जितना बताया बड़ा हाँ, वैल्यूएबल था, और जब लॉन्च करेंगे हाँ, नेक्स्ट आपने इसका नाम बताया, हम उस पर बिल्कुल। जरूर सेगमेंट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत इट शुक्रिया. वाज वंडरफुल हैविंग यू. नाजरीन, आपसे लेंगे दुरुस्त.